Welcome to everyone. Previous lecture we complete unit number 4, waste heat recovery, cogeneration and trigeneration. Now today's lecture we start our unit number 5 on nuclear power plant. Today's lecture we firstly understand the what is the syllabus for the nuclear power plant and what is the working in a nuclear power plant. Okay. Firstly, in a nuclear power plant, syllabus is a introduction of nuclear power plant, why we are using the nuclear power plant, and the general arrangement of nuclear power plant. Draw a general arrangement of nuclear power plant, then the principle of power plant, what is the operating principle of nuclear power plant, then construction and working of nuclear power plant, then selection of site of nuclear power plant, and the what is the point to be considered in a selection of a nuclear power plant, what is the nuclear power plant in India. Okay, nuclear power plant in India, how much nuclear power plant in India, and how much electricity generated by the nuclear power plant. Then state the nuclear waste disposal, then comparison between nuclear power plant and conventional power plant. Okay, then also what is the advantage, disadvantage, then nuclear fuel, which types of fuel are used in a nuclear power plant, that is a nuclear fuel, then main component of nuclear reactor. Okay, this is a nuclear power plant, so we are always using in a nuclear reactor in a this power plant. Then what is the function of nuclear power plant? Then next point is explain the function of a component of a nuclear reactor and its component. So also its components means this is the different classification of reactor, means classification of reactor, then types of reactor in a power plant, then what is the types of reactor, then pressurized water reactor. ओके, मग कोणकोणते पॉवर प्लांट. ओके, आपण जो सिलेबस बघतोय हा न्यूक्लिअर पॉवर प्लांटचा सिलेबस काय काय आपण एकदा तो बघूया की जे आपलं न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट युनिट आहे हे लार्ज युनिट आहे, खूप मोठं युनिट आहे. म्हणजे बघायला गेलं ते की पॉवर प्लांट सब्जेक्ट मध्ये युनिट नंबर 5 हे सगळ्यात लार्ज युनिट आहे. ओके, आता कोणकोणते टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट, न्यूक्लिअर रिएक्टर, what is are the types of nuclear reactor. मग कोणते रिएक्टर आहे? PWR reactor means pressurized water reactor. Then advantage of pressurized water reactor, disadvantage, then the what is second type of reactor is a boiler water reactor. And also we taken the what is a boiler water reactor, advantage, disadvantage. And third reactor is a gas cooled reactor. Okay, they are given a different types of reactor. We study the pressurized water reactor, boiler water reactor and the gas cooled reactor, and then explanation of these different types of reactor, also given the advantage and disadvantage of this type reactor. Then next point is a liquid metal reactor. Okay, liquid made reactor, also taken advantage of the SGR means liquid gas cooled reactor, then disadvantage also. Then last next point is a introduction to regulating agency and regulation. ओके, आता न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट आहे. आपण जर बघितलं की न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट जिथे जो प्लांट असतो तो जे आपलं विलेज असतं त्या विलेज पासून काहीतरी किलोमीटर अंतरावर ते आपले नॉर्म्स असतात, त्या डिस्टन्सवर ते आपला प्लांट हा इन्स्टॉल करावा लागतो, कारण की न्यूक्लिअर रिएक्टर आपण यूज करतोय. म्हणजे आपण बघितलं की डिझेल, पेट्रोल्स, वूड हे आपण बॉयलर म्हणजे फ्यूल म्हणून यूज करायचं, पण जे आपलं न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट आहे त्याच्या नेम मध्ये न्यूक्लिअर हा न्यूक्लिअर केमिकल हा यूज केला जातो, म्हणजे तुमचा फ्यूल म्हणून यूज केला जातो. मग त्याच्यापासून जे रॅडिएशन क्रिएट होतं न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट पासून, जे रॅडिएशन क्रिएट होतं हे ह्युमन बॉडीला अफेक्टेड होऊ शकतं, हार्मफुल होऊ शकतं. म्हणजे न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट पासून जे निघणारे अनवॉन्टेड गॅसेस असतील त्या गॅसेसमुळे जी ह्युमन बॉडी असेल त्याच्यावर काही अफेक्ट म्हणजे सॉरी त्या ह्युमन बॉडीवर काही कॉजेस होऊ शकतात. ओके, म्हणजे काही हानी होऊ शकते. जे आपले पीपल्स असतील, गाव असेल, विलेज असेल, त्याच्याजवळ जर पॉवर प्लांट इन्स्टॉल केला तर त्याच्यापासून निघणारे जे रॅडिएशन आहे त्या रॅडिएशनमुळे ह्युमन बॉडीला काही प्रॉब्लेम क्रिएट होऊ शकतो. त्यामुळे ते नॉर्म्स नुसार इंट्रोडक्शन टू रेग्युलर एजन्सी अँड रेग्युलेशन जो ऍक्ट आहे या ऍक्ट नुसार तो आपला पॉवर प्लांट अशा ठिकाणी तो इन्स्टॉल करावा लागतो. ओके, त्यामुळे की जे आपले ह्युमन बॉडी असेल त्याला कोणताही इफेक्ट होणार नाही. दॅट इज द डिफरंट टाइप्स ऑफ नॉर्म. ऑल्सो आपण बघितलं की बॉयलर इन्स्टॉल करत असताना की डिफरंट टाइप्स ऑफ नॉर्म असतात, त्या नॉर्म नुसारच आपल्याला तो बॉयलर इन्स्टॉल करत येतो. त्या प्रकारेच न्यूक्लिअर पॉवर प्लांटला काही गव्हर्नमेंट स्टेट असेल किंवा सेंट्रल गव्हर्नमेंट त्याच्या एजन्सी असतील त्यांच्यानुसार काही रेग्युलेशन ऍक्ट तिथे दिलेले, मग ते आपण स्टडी करणार आहे. देन ऑटोमिक एनर्जी रेग्युलेटिंग बोर्ड. ओके, ऑटोमिक एनर्जी रेग्युलेटिंग बोर्ड काय ते आपला स्टडी करायचं. देन इंटरनॅशनल ऑटोमिक एनर्जी एजन्सी, दे आर गिवन ऑटोमिक. ओके, आपलं न्यूक्लिअर जो यूज करतो
जो आपण न्यूक्लिअर यूज करतो त्या न्यूक्लिअर मध्ये आपण ॲटॉमिक एनर्जी असते, त्या एनर्जी थ्रूच आपली ती इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते. मग त्या परमिशन देण्यासाठी किंवा ते न्यूक्लिअर प्रोव्हाइड करावं लागतं. ओके, ते न्यूक्लिअर त्या प्लांटला प्रोव्हाइड करावं लागतं. मग ते प्रोव्हाइड करण्यासाठी कोणकोणत्या एजन्सी, ॲटॉमिक एनर्जी रेग्युलेटिंग बोर्ड्स अँड इंटरनॅशनल ॲटॉमिक एनर्जी एजन्सी. ओके, 2 टाईपच्या एजन्सी असतील. ओके, तर आपण बघितलं की जो न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट, ह्या न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट मध्ये हा सिलेबस असणार आहे आपला. मग आपण न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट स्टडी करायचे आहे, त्याची अरेंजमेंट, त्याची वर्किंग, मग किती कॅपॅसिटी असते, मग सिलेक्शन साईड असेल, त्याच्यानंतर इंडियामध्ये किती पॉवर प्लांट्स आहे आणि किती इलेक्ट्रिसिटी जनरेट केली जाते, नंतर ते न्यूक्लिअर जे वेस्टेज असतं ते डिस्पोज कसं केलं जातं, त्याचं कंपॅरिझन असतील न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट अँड अदर पॉवर प्लांट रिगार्डिंग, त्या न्यूक्लिअर फ्यूल कोणतं यूज केलं जातं, मेन कंपोनंट. मग नंतर असेल डिफरंट टाइप्स ऑफ रिएक्टर. मग कोणकोणते टाइपचे रिएक्टर आहे, प्रेशराइज वॉटर रिएक्टर, बॉइलिंग वॉटर रिएक्टर, gas cooled reactor, liquid metal reactor. Okay, this is a different types of reactors आपल्याला स्टडी करायचं आहे. then last point असेल इंट्रोडक्शन टू रेग्युलेटिंग एजन्सी अँड रेग्युलेशन्स, ॲटॉमिक एनर्जी रेग्युलेटिंग बोर्ड अँड इंटरनॅशनल ॲटॉमिक एनर्जी एजन्सी. एवढा आपल्याला न्यूक्लिअर पॉवर प्लांटचा सिलेबस असणार आहे. स्टार्टिंगला आपण चॅप्टर स्टार्ट करण्याच्या आधी आपण नेक्स्ट जे लेक्चर असेल त्या नेक्स्ट लेक्चरला आपण न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट स्टार्ट करणार आहे. बट न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट जो असतो मग तो कोणत्या ठिकाणी प्लेस केलेला असतो. मग सपोज आपण रिएक्टर बघितले, त्याची अरेंजमेंट असते, वर्किंग असतं. आपण स्टार्टिंगला काय व्हिडिओ थ्रू आधी न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट बघणार आहे की न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट नेमकी काय असतो आणि कोणता फ्यूल यूज केला जातं, त्या फ्यूल पासून इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करत असताना कोणकोणते कंपोनंट असतात. जसं आपण बॉयलर बघितलं, बॉयलर नंतर सोबत कंबशन चेंबर, नंतर जनरेटर असतं, रिएक्टर असतं, इकोमनायझर असतं, असे पार्ट असतात. प्रत्येक पॉवर प्लांटचे हे वेगवेगळे असतात. मग आता आपण न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट स्टार्ट केलाय तर आपण ते व्हिडिओ बघणार आहे की व्हिडिओमध्ये ते आपल्याला शो करतील की न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी कसा जनरेट करतो, कोणकोणते पार्ट कुठे कुठे अरेंजमेंट केलेले असते आणि प्रत्येक पार्टचं वर्किंग काय ते आपण एकदा बघणार आहे. म्हणजे ते आपल्याला अंडरस्टँड होईल का नेमकी न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट काय असतो आणि त्याचे कंपोनंट कसे असतात. ओके, त्याची साईज कशी असते, प्रत्येक कंपोनंटचं वर्किंग काय असतं हे आपण बघणार आहे. आणि त्याच्यानंतर नेक्स्ट लेक्चरला आपण न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट जो आपला फर्स्ट पॉईंट आहे तो स्टार्ट करणार आहे. A nuclear power plant is a thermal power station, which generates electrical energy from heat, and it's basically a factory for making lots of electricity, enough to power a city of around 2 million people. Nuclear energy is the world's second largest, low-carbon source of electricity. Approximately 10% of the global electricity is being generated by nuclear reactors. As of April 2020, there are 440 operable power reactors in the world, with a combined electrical capacity of 390 gigawatts. By far the largest nuclear electricity producers are the United States, with 809,359 gigawatt per hour of nuclear electricity in 2019. The nuclear power plant consists of numerous buildings and facilities, the most important of which are as follows. This is the containment building, where the nuclear reactors are housed. It is made of 2 meters thick reinforced concrete. Inside the containment building, a large tank called calandria, which is the heart of the nuclear reactors. This is the turbine generator building. It houses the turbine and generator. This is the controlling building, for monitor and control the nuclear reactors. The fuel is naturally occurring uranium. That process into small pellets. Then the pellet are sealed into metal tubes, which are welded to form a fuel bundle. The fuel bundles are then inserted in a large tank called calandria, which is the heart of the nuclear reactor. Typically more than 200 of these rods are bundled together to form a fuel assembly. A reactor core is typically made up of a couple of hundred assemblies. In order to allow See here, हे बघा इथे जे दिलेला हा पार्ट रिएक्टर आहे. ओके, इथे आपण काय केलेलं आहे, रिएक्टर इन्सर्ट केलेले आहे. ओके, nuclear fission. To proceed in a controlled manner, a control rod exists. The control rod can be moved up and down to control the fission rate of uranium.
The nuclear power plant produces electricity using the heat that comes from splitting uranium atoms in a process called nuclear fission. Nuclear fission is a nuclear radioactive decay process in which the hitting neutrons on the uranium atoms, then the uranium atoms split into two, and it releases 3 neutrons. Each process releases 2 uranium atoms and 3 neutrons. A chain reaction of atom splitting can ensure that there is a constant source of heat, meaning that it generates lots of heat. This heat is used to convert electricity. Let's explore how they produce electricity from heat. The calandria vessel is a cylindrical vessel housing the lots of lattice tubes, which are filled with the heavy water moderator that flows around the fuel bundles. Heavy water is found in all water, rivers, and oceans. On average, 1 out of every 7,000 drops of water is heavy water. It is 10% heavier than ordinary water because it incorporates a heavy form of hydrogen called deuterium. During the nuclear fission process, the heavy water flows around the fuel bundles. A chain reaction of splitting atoms releases tremendous amount of heat into the heavy water. Then the heated heavy water flows through a closed loop system that's pumped through the reactor to a set of the steam generator, where it transfers the heat to ordinary water. When that water boils, it turns into steam. The steam is transported at high pressure through pipes to a large turbine, where pushes the blade and turns a shaft connected to a rotor in the generator, causing the rotor to spin. The spinning rotor is a large electromagnet that producing rotating magnetic fields. Due to this process, electricity is generated. Then it transferred to the transmission line. नियमानुसार सबसे महत्वपूर्ण है इस बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के लिए जरूरी जनरेटर के साथ साथ कई टरबाइन भी होते हैं। दूसरा है कंटेनमेंट बेल्ट, जहां परमाणु रिएक्टर भारत मेटेलिक रेनफोर्स्ड कंक्रीट से बना होता है। इस इमारत के अंदर परमाणु प्रक्रियाएं होती हैं, जहां पानी गर्म किया जाता है। कूलिंग टावर जो 200 मीटर तक लंबा हो सकता है, जहां गर्म पानी ठंडा होता है। अंडरलाइन प्रिंसिपल को आसानी से समझने के लिए निम्नलिखित परमाणु ऊर्जा संयंत्र के सबसे महत्वपूर्ण घटकों का वर्णन, जो दबाव वाले जल रिएक्टर PWR का उपयोग करता है। रिएक्टर दबाव वेसल में परमाणु प्रक्रियाएं और तापीय ऊर्जा के संयोग रियाई होते हैं। एक दबाव वाले पानी रिएक्टर में इस मामले में रिएक्टर दबाव वेसल 12 मीटर लंबा होता है। दीवारें लगभग 25 सेंटीमीटर मोटी होती है, जो कि अंदर ईंधन असेंबली में मिलता है। ऐसी 150 असेंबली दबावित जल रिएक्टर में स्थापित की जाती है। एक ईंधन असेंबली कई ईंधन रॉड से बना होता है। एक ईंधन रॉड की लंबाई लगभग 5 मीटर और इसमें 25 सेंटीमीटर का आयाम होता है। प्रत्येक ईंधन रॉड के अंदर वास्तविक परमाणु ईंधन मिलता है। जो छोटे परमाणु ईंधन गोले जिसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम परमाणु विभाजन प्रक्रियाएं संभव फ्यूजन श्रृंखला प्रतिक्रिया थर्मल ऊर्जा जारी करता है। थर्मल ऊर्जा को अवशोषित करने और श्रृंखला प्रणाली को जारी रखने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। वेसल के अंदर पानी को 570 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म किया जाता है। पानी के दबाव पानी तब तक उबाल नहीं लेता जब तक 160 बार ना पहुंच जाए। गर्म पानी को हथियार हीट एक्सचेंजर को पंप किया जाता है, जिसे भाप जनरेटर भी कहा जाता है। यह आमतौर पर ट्यूब हीट एक्सचेंजर के रूप में होता है। गर्म पानी पाइप की धातु को गर्म करने वाले ट्यूब लूप के माध्यम से बहता है, ताकि गर्मी एक्सचेंजर के अंदर कोई भी पानी टरबाइन भाप पाइप के एक सेट के माध्यम से परिणामी भाप को उबालने में लगे।
भाप पहले उचित दबाव टरबाइन संचालित और फिर आमतौर पर 2 कम दबाव टरबाइन से संचालित होता है। सभी टरबाइन विद्युत जनरेटर के माध्यम से एक स्पिनिंग शाफ्ट से जुड़े होते हैं, जो बदले में स्पिनिंग रोटेशनल एनर्जी से ऐसी बिजली उत्पन्न करता है। भाप को फिर से संघनित में तरल रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है और फिर भाप जनरेटर पर वापस लौटा दिया जाता है। इसके लिए आवश्यक पानी निकटवर्ती नदियों से लिया जाता है या एक कूलिंग टावर में ठंडा होता है। वाटर सर्कुलेशन सिस्टम हमेशा एक दूसरे से अलग रखी जाती है। प्राइमरी सर्कुलेशन सिस्टम में पानी कभी भी भाप की इमारत में नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि यह पानी रेडियो एक्टिव होता है और यह विद्युत छड़ से सीधे संपर्क में रहता है। सेकेंडरी सर्कुलेशन सिस्टम में पानी टरबाइन ड्रिवन करने के लिए प्रयोग किया जाता है और यह रेडियो एक्टिव भी नहीं होता है। कूलिंग सर्कुलेशन सिस्टम ठंडा पानी प्रदान करती है और सेकेंडरी सर्कुलेशन सिस्टम में भाप को कंडेंस करने के लिए उपयोग करती है। My job is to स्टीम टरबाइन को रोटेट कराते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट है क्या? न्यूक्लियर पावर प्लांट एक ऐसा थर्मल पावर स्टेशन है जिसमें जो हीट सोर्स होता है वो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, और इस रिएक्टर से जो हमें हीट मिलती है उसका हम यूज करते हैं स्टीम को जनरेट करने में, स्टीम बनाने में। फिर इस स्टीम से हम स्टीम टरबाइन को रोटेट कराते हैं जो जनरेटर से कनेक्ट रहती है और उसके द्वारा हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो ये बेसिक जनरल प्रिंसिपल है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं? देखिए, मोस्टली पावर प्लांट में हम टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो उसके लिए हमें स्टीम की जरूरत होती है और स्टीम बनाने के लिए हम कोल, नेचुरल गैस या ऑयल को बर्न करते हैं। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है वो इन सभी से डिफरेंट होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम किसी भी चीज को बर्न नहीं करते हैं, इसकी जगह पर हम यूरेनियम के एटम को स्प्लिट करते हैं, उसको तोड़ते हैं, और ये जो रिएक्शन कहलाती है ये कहलाती है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। और एक एडवांटेज जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का रहता है, क्योंकि इसमें किसी भी चीज को हम बर्न नहीं कर रहे हैं, तो इसमें जो पॉल्यूटेंट हैं लाइक कार्बन पॉल्यूटेंट या नाइट्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड नहीं करते हैं। तो एक तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट से हमें मिलती है वो क्लीन एनर्जी के रूप में मिलती है। नेक्स्ट, अब इसमें हमारे पास यूरेनियम के मॉलिक्यूल्स होते हैं
जो हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं। जब उस पर न्यूट्रॉन्स टकराते हैं तो यूरेनियम के जो मॉलिक्यूल हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिससे कि और ज्यादा न्यूट्रॉन्स और हीट जनरेट होती है। अब ये जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं ये दोबारा से आगे जो यूरेनियम के एटम है उनसे टकराते हैं, फिर से वो यूरेनियम एटम्स स्प्लिट होते हैं, जिससे फर्दर न्यूट्रॉन्स और हीट जनरेट होती है। तो एक तरह से ये चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिससे हमें न्यूट्रॉन्स और हीट मिलती जाती है। इसके बाद जो हीट हमें मिली है उसका हम यूज करते हैं स्टीम जनरेट करने के लिए, और उस स्टीम के द्वारा हम टरबाइन को रोटेट कराएंगे और वो टरबाइन आपकी कनेक्ट रहती है जनरेटर से, जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। तो न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस क्या है? देखिए, न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस में एक हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस को दो लाइटर न्यूक्लियस में स्प्लिट किया जाता है, तोड़ा जाता है। तो हम न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का यूज करते हैं। जैसे कि डायग्राम में हमारे पास यूरेनियम 235 है और इस पर जब न्यूट्रॉन टकराएगा तो ये स्प्लिट होके दो हल्के न्यूक्लियस में टूट जाएगा, और इस पूरे जो स्प्लिट होने की प्रोसेस है उसमें काइनेटिक एनर्जी निकलती है, गामा रेडिएशन निकलता है और फर्दर फ्री न्यूट्रॉन निकलते हैं। एक जब यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस टूटता है तो उससे 3 फ्री न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, और ये फ्री न्यूट्रॉन फिर से यूरेनियम 235 का जो आगे न्यूक्लियस होंगे उनसे टकराएंगे और उनको फर्दर स्प्लिट करेंगे, फिर से उसमें से हमें एनर्जी प्राप्त होगी और फ्री न्यूट्रॉन्स प्राप्त होंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस पूरी कंटिन्यू आगे चलती जाती है और इसी को कहा जाता है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। अब यूरेनियम 235 को स्प्लिट करने के लिए जो न्यूट्रॉन की एनर्जी चाहिए होती है वो लो अमाउंट की चाहिए होती है, लेकिन जब ये स्प्लिट होने की प्रोसेस होती है तो इससे जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, अधिक होती है। तो उसको कम करने के लिए हम मॉडरेटर का भी यूज करते हैं, जो न्यूट्रॉन्स की एनर्जी को कम करता है, जो यूजफुल होती है यूरेनियम 235 को स्प्लिट कराने के लिए। तो ये होती है आपकी न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस। तो जो ओवरऑल एनर्जी हमें मिलती है न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस से वो बेसिकली 3 स्टेप में है। पहला तो जो फिजन प्रोडक्ट हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है थर्मल एनर्जी में, जब जो न्यूक्लियस है लाइटर न्यूक्लियस वो कोलाइड करते हैं अपने आसपास के एटम्स। तो इस कंडीशन में हमें हीट एनर्जी मिलती है। सेकेंड, मैंने आपको बताया कि इसमें गामा रेज प्रोड्यूस होती हैं। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो फिजन रिएक्शन में निकलने वाली गामा रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है हीट एनर्जी। तो यहाँ से भी एनर्जी मिलती है। जो न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन के कारण जो फिजन प्रोडक्ट हैं या मटेरियल हैं जो एक्टिवेट हो गए उनका रेडियोएक्टिव डिके होता है, उसके कारण भी क्या होता है, हीट हमें मिलती है। तो ओवरऑल इन 3 प्रोसेस के कारण हमें एनर्जी मिलती है। अब अगर मैं कंपेयर करूं, अगर मेरे पास 1 kg यूरेनियम 235 है और 1 kg कोल है, तो जो यूरेनियम 235 की एनर्जी होगी वो 1 kg कोल को बर्न करने से उसके अप्रॉक्स 3 मिलियन टाइम ज्यादा होती है, यानी 3 मिलियन गुना अधिक होती है। तो आप देखते हैं कि कितनी ज्यादा एनर्जी हमें मिलती है न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस के कारण। तो अब हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट लेआउट के बारे में। देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट अपने कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे अलग अलग तरह के बारे में देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट अपने कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर या प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। अब यहाँ पर जो आपको प्लांट लेआउट अभी दिख रहा है वो जनरल प्लांट लेआउट है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का। ठीक है, अब हम इसके बारे में इसके कंपोनेंट देखेंगे कि अलग अलग कंपोनेंट की क्या क्या वर्किंग होती है, फिर लास्ट में मैं इसकी ओवरऑल आपको वर्किंग प्रिंसिपल बताऊंगा किस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर में हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करा के स्टीम जनरेट करते हैं, फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो कंटेनमेंट स्ट्रक्चर के अंदर का जो पार्ट है ये कहलाता है न्यूक्लियर रिएक्टर, और इसके सेंट्रल पार्ट में
रिएक्टर कोर होती है जिसमें न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है जिससे कि हीट प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट इसके बाद रिएक्टर कोर। रिएक्टर कोर ये जो पार्ट है रिएक्टर कोर कहलाता है। ये सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप का होता है जिसका डायमीटर अप्रॉक्स 5 to 15 मीटर रहता है। कोर कहलाता है। ये सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप का होता है जिसका डायमीटर अप्रॉक्स 5 to 15 मीटर रहता है। रिएक्टर कोर के अंदर फ्यूल रॉड, कंट्रोल रॉड, मॉडरेटर, कूलेंट ये सभी रहते हैं और जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है वो इसी रिएक्टर कोर के अंदर होती है। अब इसमें प्रेशर वेसल होता है और फ्यूल एलिमेंट होते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है बाहर से इसको हम बोलते हैं प्रेशर वेसल और इसके अंदर हम रॉड या प्लेट के रूप में फ्यूल रॉड को इंसर्ट कराते हैं। तो फ्यूल रॉड के ऊपर स्टील, जर्कोनियम या एल्युमिनियम की लेयर चढ़ाई जाती है जिससे कि उसका कोरोजन ना हो। मॉडरेटर कोरोजन ना हो। मॉडरेटर देखिए मॉडरेटर वह सब्सटेंस है जो न्यूट्रॉन्स की हाई वेलोसिटी और उसकी हाई एनर्जी को स्लो करने का काम करता है। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस में हमें लो स्पीड और लो एनर्जी के न्यूट्रॉन्स की जरूरत होती है यूरेनियम 235 को स्प्लिट करने के लिए। पर प्रोसेस में हमें जो न्यूट्रॉन मिलते हैं उनकी वेलोसिटी और उनकी एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है तो उसको हमें लो करने के लिए मॉडरेटर का यूज करना पड़ता है। मॉडरेटर को हम फ्यूल रॉड के बीच में लगाते हैं। मॉडरेटर के रूप में हम जनरली ऑर्डिनरी वाटर, ग्रेफाइट या हैवी वाटर का यूज करते हैं। मेन जो पर्पस है मॉडरेटर का वह यह है कि ये हाई वेलोसिटी के न्यूट्रॉन्स की वेलोसिटी को कम करने का काम करता है ताकि वो फिजन की प्रोसेस के लिए यूजफुल फ्यूल से। और जब हमें रिएक्शन को कंट्रोल करना होता है या उसको स्लो करना होता है तो हम कोर के अंदर कंट्रोल रॉड को पुश करा देते हैं जिससे कि न्यूट्रॉन कंट्रोल रॉड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं जिससे कि रिएक्शन स्लो हो जाती है। तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हम कंट्रोल रॉड्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कूलेंट। कूलेंट न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में प्रोड्यूस होने वाली हीट को एब्जॉर्ब करता है, फिर उस हीट को स्टीम जनरेटर में ले जाता है जहां वाटर से स्टीम बनाई जाती है। फिर उसके बाद ये पंप दोबारा से कर दिया जाता है रिएक्टर कोर के अंदर जहां फिर से वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह से इस साइकिल में कूलेंट चलता रहता है। कूलेंट के रूप में वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। इसका काम रिएक्टर कोर को ठंडा करने का भी होता है। नेक्स्ट है प्रेशराइजर। मैंने आपको बताया ये लेआउट प्रेशराइज वाटर रिएक्टर का है। तो प्रेशराइजर का काम
रिएक्टर कूलेंट के प्रेशर को एक डिजायर्ड लेवल पर, जितना हमें लेवल आवश्यक होता है वहां पर बनाए रखने का काम रहता है प्रेशराइजर का। तो अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो हीट सोर्स है वो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। बाकी कंपोनेंट जैसे टरबाइन, हीट वाटर पंप, कंडेंसर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, कूलिंग टावर, ये सभी वैसे ही वर्क करते हैं जैसे थर्मल पावर प्लांट में वर्क करते थे। तो हम डिस्कस करेंगे पहले यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर कोर होती है जिसमें न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है। सबसे पहले तो हमें फिजन रिएक्शन को स्टार्ट करना है, तो उसके लिए कंट्रोल रॉड को हम बाहर की तरफ खींचते हैं जिससे कि न्यूट्रॉन की मूवमेंट इसमें स्टार्ट हो जाती है। न्यूट्रॉन्स यूरेनियम 235 फ्यूल रॉड्स पर टकराते हैं जिससे कि फिजन रिएक्शन स्टार्ट होती है और न्यूट्रॉन्स के कारण फ्यूल रॉड यूरेनियम 235 लाइटर न्यूक्लियस में टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, जिससे कि हाई अमाउंट ऑफ हीट और न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह से इसमें चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है। उसके बाद दोबारा से कंट्रोल रॉड को अंदर की तरफ पुश कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर हमें लो एनर्जी लेवल और लो वेलोसिटी के न्यूट्रॉन्स की जरूरत है, क्योंकि उनके ही द्वारा हम आसानी से यूरेनियम 235 फ्यूल रॉड्स को न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में स्प्लिट करा सकते हैं। तो जब यहाँ पर हम कंट्रोल रॉड को अंदर की तरफ पुश करते हैं तो न्यूट्रॉन्स का एनर्जी लेवल कम हो जाता है और जो एनर्जी है वो कंट्रोल्ड मैनर में हमें मिलना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हम पंप की सहायता से कूलेंट इसमें कंटिन्यू फ्लो कराते हैं। कूलेंट जब कोर के पास जाता है तो वो वहाँ की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद यह कूलेंट स्टीम जनरेटर में जाता है। स्टीम जनरेटर में फीड वाटर पंप से वाटर आता है जो यहाँ कॉइल्स की माध्यम से नीचे की तरफ आता है और फिर वो जब कूलेंट की हीट को एब्जॉर्ब करता है तो वाटर यहाँ स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और फिर कूलेंट को दोबारा से हम पंप से फिर से कोर के अंदर इंसर्ट करा देते हैं। तो इस तरह से कूलेंट की यहाँ पर साइकिल चलती रहती है। वो स्टीम जनरेटर में जाता है, वहाँ वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेगा, उसका पंप से फिर से कोर में जाएगा जहाँ वह न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में प्रोड्यूस होने वाली हीट को एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो फिर से स्टीम जनरेटर में जाएगा। तो ये तो रहती है यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कूलेंट की साइकिल। इसके बाद स्टीम जनरेटर से जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया है तो उसको फिर हम भेजते हैं टरबाइन। टरबाइन में जाने के बाद क्योंकि यहाँ पर जो स्टीम है वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की है, वो टरबाइन के ब्लेड से टकराती है जिससे कि टरबाइन के ब्लेड रोटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। टरबाइन के ब्लेड्स की शाफ्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ कनेक्ट रहती है जिससे कि ब्लेड्स के रोटेट होने से इलेक्ट्रिक जनरेटर शाफ्ट रोटेट होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब जब टरबाइन ब्लेड से टकराने के बाद स्टीम अपना प्रेशर और कुछ टेम्परेचर रिड्यूस कर देती है, कम हो जाता है उसका प्रेशर और टेम्परेचर। तो यहाँ से लो प्रेशर और लो टेम्परेचर स्टीम कंडेंसर में जाती है जहाँ उसको लिक्विड फॉर्म में यानी कि वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। तो वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ कंडेंसर में वाटर साइकिल चलती है। यहाँ पंप की हेल्प से हम कोल्ड वाटर को कंडेंसर में डालते हैं जहां वो स्टीम की हीट को एब्जॉर्ब करता है और फिर वार्म वाटर में कन्वर्ट होकर दोबारा से